Good morning, kids. Welcome back to your EVS class. So, in the first video of this chapter, we studied about some food preservation methods, but we didn't touch them in detail. Today, we will going to study some or all the methods which we studied in that slide and some new methods of food preservation. So, let's start our class. So, first of all, let's see what is the meaning of food preservation. I have already told you, this is just for your revision. The process or processes by which we can delay or prevent spoilage of food is called food preservation. तो वो सारे processes, वो सारे तरीके जिनसे हम फूड के स्पॉयलेज को प्रिवेंट या डिले कर सके, या तो स्पॉइलेज हो ही ना या डिले हो जाए, उसका लाइफ स्पैन जो है, उसका लाइफ जो है वो बढ़ जाए, तो उन सारे प्रोसेसेस को या उस मेथड को हम फूड प्रिजर्वेशन कहते हैं. देन क्वेश्चन अराइजेस कि फूड प्रिजर्वेशन की ज़रूरत ही क्यों है. वाई व्हाट इज़ द नीड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन एंड वाई इज़ द नीड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन. This is because, suppose, take an example of mango. So this is the season of mango. You are getting mango, but after some time, when the season of mangoes over, and if you feel like you want to eat mango, you want flavor of mango, then so food preservation is done to not only to prevent spoilage but to also preserve food for, so that we can use it on later on whenever we need it. Okay, like as you seen in the chapter also, that arm is preserved by making mango powder, uh, pickle, jam, mango jam, pickle, and mamidi tandra. So all these are methods to preserve and so that we can use it in later on. So some methods of food preservation are drying, freezing, salting and sugaring, canning, pasteurization, boiling, oiling, pickling, and adding preservatives. So let's start our chapter. Let's start our first method, drying. It is one of the oldest method of food preservation, and it is the process of removing water or moisture from a food product. It is a natural method of food preservation, and dried foods are ideal for long train journey, hiking, camping because of they weigh लेस. सो बेसिकली ड्राइंग आपने भी देखा होगा आपके घरों में, ये मेथड्स हमारी मदर्स भी यूज़ करती हैं टू ड्राई सर्टेन फूड आइटम्स, लाइक स्पेशली चिली. तो सबने देखा होगा कि सबके घर में वो चिली को ड्राई किया जाता है अंडर द सनलाइट. As you can see in the picture, tomatoes are also dried. Then this is apple. So these food items are dried so that we can use it later on. So this is one of the method to preserve food, and this is very you know cost effective method, because यहाँ पे आपके कोई पैसे नहीं लग रहे हैं. You are just doing it in natural sunlight, which is free of cost. So this is one of the I can say best method of food preservation. But not all food items can be preserved by this method. So let's move to next method, freezing. Freezing. तो freezing is the second method. Freezing, what is freezing? Freezing मतलब किसी भी चीज़ को एकदम चिल्ड आउट कर देना, एकदम ऐसा कर देना कि उसके अंदर की जो एक्टिविटीज़ हो रही है वो बिल्कुल रुक जाए. सेम वे फूड आइटम्स को फ्रीज करना मतलब उनको एकदम चिल करना एटलीस्ट -18 डिग्री सेल्सियस. अब 18 डिग्री -18 डिग्री सेल्सियस, तो डिग्री सेल्सियस जैसे आप अपने मैथ्स की क्लास में पढ़ा होगा कि आप डिस्टेंस को मेजर करने के लिए सेंटीमीटर और मीटर का यूज़ करते हो. ठीक है, वैसे ही टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम डिग्री सेल्सियस का यूज़ करते हैं. जैसे आप डिस्टेंस को करते हो मेजर सेंटीमीटर और मीटर और किलोमीटर में, वैसे ही टेम्परेचर क्या होता है?
डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, कितना गर्म कोई चीज़ है, कितना ठंडा कोई चीज़ है, ये टेम्परेचर हो गया। ठीक है, तो इसको हम मेजर करते हैं डिग्री सेल्सियस में। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्टिंग पॉइंट होता है, और 100 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो यू कैन इमेजिन कि -डिग्री सेल्सियस बहुत ही लो टेम्परेचर होता है। माइनस में टेम्परेचर मतलब बहुत ही लो टेम्परेचर पे हम अपने फूड आइटम्स को फ्रीज करते हैं। फ्रीजिंग से एक चीज़ होती है कि जो क्वालिटी है फूड की वो हमेशा रिटेन रहती है, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आते, और कन्वीनियंट भी है। कन्वीनियंट मतलब बहुत इजी है, टाइम कम लेता है। यू जस्ट हैव टू कीप इट इन अ कंटेनर at -18 डिग्री सेल्सियस। सो नेक्स्ट मेथड इज़ सॉल्टिंग एंड शुगरिंग। तो ये भी आपने अपने होम्स में, अपने घरों में देखा होगा कि हमारी मदर्स ये मेथड यूज़ करती हैं कुछ फूड आइटम्स को प्रिजर्व करने के लिए। ठीक है, प्रिजर्विंग फूड आइटम इन हाई शुगर environment स्टॉप बैक्टीरियल ग्रोथ बाय रिड्यूसिंग द फूड वाटर कंटेंट. It works particularly well for fruits. You can make jam and marmalade for long time and use canning to store it. सो शुगर, हाई शुगर इन्वायरमेंट में हम किसी भी फूड प्रोडक्ट को रखते हैं, इससे क्या होता है, उसका जो वाटर कंटेंट होता है वो शुगर की वजह से वो शुगर उसको ड्रा आउट कर लेता है, मतलब उस वाटर कंटेंट निकल जाता है। तो हमने कंडीशंस ऑफ फूड स्पॉइलेज में पढ़ा था कि फूड स्पॉइलेज के लिए कंडीशंस क्या होती हैं। एक तो टेम्परेचर बढ़ता है, एक मॉइस्चर होता है, एयर कंटेंट ज़्यादा होता है। तो इसका तो मॉइस्चर अगर निकल गया तो ऑब्वियसली फूड गेट प्रिजर्व्ड, और ये पर्टिकुलरली फ्रूट्स के लिए होता है। शुगरिंग मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन फ्रूट्स के लिए एप्लीकेबल होता है, और हम क्या जैम्स और मार्मलेट बनाते हैं ना, तो ये सारे। और फिर एक कैनिंग मेथड होता है जिससे हम उसको स्टोर करके रखते हैं, यानी कि एक फूड प्रिजर्वेशन एक सिंगल मेथड से नहीं होता है, हम 2 या 3 या कभी कभी 4 मेथड्स भी अप्लाई करके फूड को प्रिजर्व करते हैं, विच विल यू सी इन द कमिंग स्लाइड। सॉल्टिंग सिमिलरली, जैसे शुगर वाटर कंटेंट को फूड के ड्रॉ आउट कर लेता है, निकाल लेता है, वैसे ही सॉल्ट भी करता है। सॉल्ट का भी काम यही है कि वो वाटर जो रहता है फूड में उसको ड्रॉ आउट करे, और बैक्टीरियल ग्रोथ को, बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो फूड को स्पॉइल करते हैं, तो उनको वो किल कर दे। अच्छा, सॉल्टिंग जो होता है इट इज़ ऑफ 2 टाइप से हम कर सकते हैं। ड्राई क्योरिंग, सिंपली हम फूड में सॉल्ट डाल दें, सच इज़ मीट, एंड उसको फिर हम वी जस्ट लेफ्ट इट आउट कि उसमें से सारा वाटर जो है वो निकल जाए। एक होता है वेट क्योरिंग। वेट क्योरिंग, बेटर नोन एज ब्राइन, वी मिक्स सॉल्ट विथ वाटर एंड ऐड फूड टू द लिक्विड टू प्रिजर्व इट। अब इसमें क्या होता है, सॉल्ट और वाटर के मिक्सचर में हम फूड को रखते हैं प्रिजर्व करने के लिए। तो ये ब्राइन जो है वो क्या होता है, ये होता है सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर। सो नेक्स्ट मेथड इज़ कैनिंग मेथड। सो बेसिकली कैनिंग मेथड में ये होता है कि कैन्स या ग्लास जार्स आप समझ रहे होगे, और कैन जो होते हैं वो टिन के बने होते हैं। यू कैन आस्क योर मॉम टू शो यू, आई गेस आपके किचन में होगा ये। तो कैन्स या ग्लास जार्स में हम अपने फूड आइटम को स्टोर करते हैं, और कैनिंग के साथ जो है हम एक और मेथड अप्लाई करते हैं। लाइक जो भी फूड आइटम हम रखते हैं वो या तो ब्राइन में रखते हैं, जस्ट नाउ आई टोल्ड यू व्हाट इज़ ब्राइन। ठीक है, ब्राइन में रखते हैं या फिर किसी और सोल्यूशन में रखते हैं, और फिर उसको हम उसका कैप जो है वो उसको सील करते हैं, एंड वी पुट इट इन अ बॉइलिंग वाटर, हीट देम टू अ टेम्परेचर। फिर हम उसको हीट करते हैं। हीटिंग से क्या होता है, उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और फिर उसमें क्या होता है, डूरिंग दिस प्रोसेस जो उसमें एयर होता है वो बाहर निकलता है, और एक वैक्यूम सील फॉर्म होता है। वैक्यूम का मतलब होता है एयर ना होना। अब प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर एंड टेम्परेचर, तो प्रेजेंस ऑफ एयर इज़ वन ऑफ द कंडीशन फॉर बैक्टीरिया टू ग्रो। तो एक वैक्यूम सील क्रिएट हो जाती है। वैक्यूम का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ एयर, जहाँ पे
एयर प्रेजेंट, हवा हो ही ना बिल्कुल भी, वो तो हम बोलेंगे वहाँ पे वैक्यूम है। So next method is pasteurization. तो pasteurization is a method that kill bacteria in liquid food. Liquid food like milk और fruit juices में उसको हम moderately high temperature, मतलब temperature बहुत कम भी नहीं होता, बहुत ज़्यादा भी नहीं होता, हम उसको ट्रीट करते हैं मॉडरेटली हाई टेम्परेचर पे उसको, एंड देन क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इनएक्टिव हो जाता है। एंड दिस मेथड इज स्पेशली यूज्ड इन मिल्क एंड for milk and fruit juices. So you can see this फ्रेश मिल्क काऊ, देन वो उसको हम हीटिंग सेक्शन में भेजते हैं, देन उसको कूल करते हैं और उसको देन हम बॉटल्स में भर के, और देन इट इज़ सर्कुलेटेड इन मार्केट. सो पेस्चराइजेशन इज़ वन ऑफ द मेथड फॉर प्रिजर्विंग मिल्क एंड फ्रूट जूसेस. ओके. और पेस्चराइज प्रोडक्ट्स जो होते हैं, अगर वो एक बार ओपन हो गए तो देन यू हैव टू रेफ्रिजरेट इट. अगर आप उसको एक बार पैकेट आपने खोल दिया, कोई भी पेस्चराइज आइटम है, और उसको आपने फिर रेफ्रिजरेट नहीं किया तो वो ख़राब हो जाएगा. देन नेक्स्ट इज़ pickling. So pickling is the process of preserving or extending the shelf life of food by keeping it in brine or immersion in vinegar. So अब यू विल से दैट सॉल्टिंग में भी हम ब्राइन में रख रहे थे, तो यहाँ पे ब्राइन में रख सकते हैं, या फिर हम उसको वेनेगर फूड प्रिजर्वेटिव की तरह अभी भी कॉमनली घरों में आपके मदर जो हैं वो यूज़ करती होंगी इन सर्टेन फूड आइटम्स. लाइक पिकल्स में भी वेनेगर डालते हैं सो दैट उस पर फंगस ना लगे और जो हमारा पिकल है वो बिल्कुल एज इट इज़ रहे. तो पिकल्स में भी यूज़ होता है वेनेगर. तो इसमें बेसिकली हम यही करते हैं ब्राइन में या फिर वेनेगर में. वेनेगर को सिरका बोलते हैं इन हिंदी. सो सिरका में हम उसको रखते हैं और फॉर प्रिजर्विंग आवर फूड. पिकलिंग प्रोसीजर टिपिकली अफेक्ट द फूड टेक्सचर, टेस्ट एंड फ्लेवर. अब पिकलिंग से क्या होता है ना, थोड़ा सा फूड के फ्लेवर में और टेक्सचर यानी कि वो कैसा दिखता है, तो उसमें थोड़ा सा इफेक्ट आता है. अदरवाइज इट इज़ वन ऑफ द good method of preservation. Next is oiling. So oil provides an airtight seal for the ingredients, thus improving the shelf life. अच्छा, what is shelf life? शेल्फ लाइफ होती है किसी फूड का अपना एक टाइम पीरियड होता है कि हाँ इतने टाइम पीरियड तक ये ठीक रहेगा, और ये टाइम पीरियड एक्सटेंड होते ही ये ख़राब हो जाएगा. लाइक फॉर अ टमाटो, फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक अ टमाटो. सो टमाटो को आप देखते होगे कि मार्केट से आता है और समटाइम्स वो फ्रिज में भी ख़राब हो जाता है अगर वो केमिकली ट्रीटेड, बहुत ज़्यादा केमिकली ट्रीटेड टोमेटो होता है. तो उस कुछ दिन बाद अगर आप देखो तो कुछ दिन तक तो आपका टमाटो ठीक रहेगा, बट आफ्टर सर्टन पीरियड इट स्टार्ट स्पॉइलिंग. तो ये होती है शेल्फ लाइफ कि एक फ्रूट की या वेजिटेबल्स की अपनी एक लाइफ होती है, एक लाइफ पीरियड होता है जब तक वो ठीक रहता है, और वो ख़त्म होते ही वो ख़राब होना शुरू हो जाता है. तो दैट इज़ शेल्फ लाइफ. सो बेसिकली ऑयलिंग मेथड यू कैन सी इन दिस पिक्चर दैट यहाँ पे सॉरी you can see in this picture that यहाँ पे ये प्रॉन्स हैं, प्रॉन्स की ऑयलिंग की जा रही है. तो बेसिकली जो हमारे सी फूड्स होते हैं ना, उनके लिए ये मेथड यूज़ किया जाता है. ठीक है. देन कम्स boiling method. So boiling is the process of applying heat to water until the temperature reaches about 100 degree. Boiling food in water cannot completely destroy all microorganisms, but the vegetative cells of bacteria, yeast and molds are generally quickly destroyed. So boiling basically हम करते हैं microorganisms को kill करने के लिए. ओके, बॉइलिंग करके फिर उसको हम अदर मेथड्स भी यूज़ करते हैं उसको प्रिजर्व करने के लिए. सो अर्लियर आई टोल्ड यू कि अभी हम एक मेथड, 2-3 मेथड अप्लाई करके फूड को प्रिजर्व करते हैं. एडिंग प्रिजर्वेटिव्स. सो
Preservatives are added to fight spoilage caused by bacteria, mold, fungus, and yeast. Preservatives are also help to keep food fresh and for longer period of time. So preservatives का हमने definitions अपने first video में देखा था. The definition of all the substances which prevent spoilage of food. ठीक है, वो सारी चीज़ें जो फूड के स्पॉइलेज को रोकती हैं वो प्रिजर्वेटिव्स होती हैं. नाउ प्रिजर्वेटिव्स आपका सॉल्ट और शुगर और विनेगर भी हो गया. ठीक है, सॉल्ट, शुगर, विनेगर, ऑयल और दीज आर ऑल्सो प्रिजर्वेटिव्स क्योंकि वो भी प्रिजर्व कर रही हैं फूड को. लेकिन हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द केमिकल प्रिजर्वेटिव्स. देर आर सर्टन केमिकल्स विच आर एडेड इन jams and fruit juices which preserve it, which extend its shelf life. तो आप if you sometimes if you see the jam bottles or pickle bottles, you see some chemical preservatives. ठीक है, these are not natural. नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स वो होते हैं जो मतलब नेचर से हमें मिल रहा है, नेचुरल है, उसमें कुछ भी ऐसा बाहर से कुछ ऐड नहीं किया गया है. ठीक है, और केमिकल्स में तो सर्टेन केमिकल्स को मिक्स करके हम बनाते हैं प्रिजर्वेटिव्स, वो होते हैं. और ये दीज प्रिजर्वेटिव्स आर हार्मफुल ऑल्सो. सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस टॉपिक. In description box I will link one video in which you saw that for preserving food we use 2 types of preservation method. Like the video link which I will give you, in that you will see how apples are preserved. First they kept it in basically it was a canning method, but first they kept it in a solution. एप्पल्स को कट करेंगे, फिर वो टिन कैन में किसी सोल्यूशन में उसको रखेंगे, देन दे सील इट एंड देन उसको क्या करेंगे, उसको फिर बॉइलिंग वाटर में डाल के उसको हीट करेंगे हाई टेम्परेचर पे. सो फूड प्रिजर्व करने के लिए हम 1 या 2 या 3 मेथड्स एक साथ यूज़ कर सकते हैं. सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस टॉपिक. आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा. इन केस कुछ नहीं समझ में आया है तो you can ask me. Thank you.